प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं जो अपने मीडियम को चेंज करना चाहते हैं, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं, जिससे कि उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इनहेंस हो सके, राइट। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मस्ट बी कमिंग टू योर माइंड इज दैट इज इट रियली पॉसिबल टू चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम? येस, इट इज पॉसिबल. What one needs to do, ज़्यादा से ज़्यादा you just start reading things in English, right? More and more if you read, right, your mind will get wired and start reflecting upon English, right? Your mind will become a kind of, habitual of everyday learning, listening, and it will start accepting the English, right? And then you just try to speak also. So listening, reading, and speaking are the most important thing, and you should not be focused upon much about, grammar kind of things, because if you read the grammar, so grammars are basically rules which are mostly focused on one sentence or two sentences. But when you are reading in a bulk, right, suppose this is the editorial, so if you are reading this, so whether you know all the grammar, but you will find it difficult to understand and make sense of what exactly the meaning of this particular, right, line or the paragraph, whatever you read, right? So let's get started here, and we'll be seeing that how we can make the notes out also, right? So this is the kind of question that I have made out of this particular editorial only, right? That in view of the 16th Planning Commission's report, because here what we are going to discuss about the 16th Planning Commission report, right? So 16th Planning Commission report we are going to discuss, because it is yet to be formed, right? So this is what the kind of questions that could be made, right? So I have tried to make the question for you, so that whenever you are reading, right, you should have an idea that, okay, why am I reading it, right? And if this particular question comes, like the exact replica comes into the examination, would you be able to write the answers out of what you are reading right now, right? So in view of the 16th Planning Commission's report on centers large fiscal imbalances, right? So here it is written like, see, large fiscal imbalances, right? Many states show large fiscal imbalances, right? So this is what we need to understand here, that what does this mean, right? So we're going to be discussing reading it and understanding, right? So it's going to be mostly in Hindi and English. So my only focus target audience is Hindi medium students who really want to change the medium from Hindi medium to English medium, right? So this is the most important part that I've highlighted. And don't get scared, अरे economics का आ गया यार, कैसे पढ़ेंगे, कुछ पता नहीं, कुछ भी नहीं पता आपको ना, still you'll be able to understand, because I'll be simplifying it to the extent that you would be able to understand in a very common sense, right? And then how to read the question? In view of the 16th Planning Commission's report on centers' large fiscal imbalances, examine the role of the non-shareable cesses and surcharges for the healthy fiscal federalism. Because if we are not able to transfer, means as the center is not able to transfer the amount of money in the form of the taxes which center shares between the states, right? So it is not going to be a good sign of the healthy fiscal, right? That healthy fiscal federalism. So we need to keep it to that mind also, because this is a term quite often being mentioned into the newspapers and being, making round the corners all the time, right? To attain the 5 trillion economy also that we have set up a target for, right? Keeping in mind the poor performances of the goods and services tax, right? So what are the drawbacks that are happening in the goods and services tax, right? So these are the things, if you know, so at least you'll be having an idea that kya hai ye, right? So you, when you start listening, so it doesn't mean that it should be like thorough with all the terms, but at least have a common kind of sense that, okay, 16th Planning Commission report is coming, it is going to be set up. So we'll have to see about the 15th Planning Commission, sometimes 11th Finance Commission, and the 12th Finance Commission, what kind of most important thing. So everything is given in this particular editorial, so you need not to worry about anything, right? So let's get started and reading and understanding that how we can move ahead with this particular editorial, right? So here the heading first. So whenever you read the editorial, you should just focus on that what is the meaning of the heading. So here, charting the path. So charting the path means looking something, right? Looking into something, right? Looking into something that what we can make things better, right? How we can do things better. So here, this is the meaning of the charting the path for the 16th Finance Commission. Means when we are going to make the 16th Finance Commission, what kind of things we are going to add into that, and analyzing based on the analysis on the past situation of our country, basically, right? So when we'll be analyzing our economic status in the country, right, how states are performing, how GST is performing, how the previous finance commissions have actually performed. So we're going to be taking some kind of actually good precedence from there, and then we're going to be making this so that we could make the fiscal status of our country in a nutshell very better, right? So let's get started reading. So I'll be mostly trying to speak in English. You just try to understand, at least if you're able to understand like 50-60%, then you are done. You should just develop a habit of listening, right? So the 16th Finance Commission, is due to be set up shortly, right? So 16th Finance Commission is due to be set up shortly, right? So you can understand कि जल्दी ही 16th Finance Commission को सेटअप किया जाएगा, ठीक? Many critical changes have taken place since the constitution of the 15th Finance Commission in November 2017 that includes COVID-19
एंड सब्सिक्वेंट जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस, राइट। सो जो बहुत ही क्रिटिकल मींस बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चेंजेस हैं जो अभी तक हुए हैं, किस में हुए हैं, 15th फाइनेंशियल कमीशन में हुए हैं, जो कि 2017 में हुआ था नवंबर में। और वो क्या इंक्लूड करता है, कोविड-19 एंड सब्सिक्वेंट जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस, ठीक है ना, कोविड-19 और उसके बाद जो भी जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, तो उनको दिमाग में रखते हुए किस तरीके की 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स आई थी, ठीक है, उसको देखना है। The combined government debt to GDP ratio had also shot up close to 90% at the end of 2021. Many states show large fiscal imbalances. Now, अब आपने जब से ये वर्ड सुना डेट टू जीडीपी रेशियो, अब एकदम सिंपल वर्ड्स में क्या है कि जितना जीडीपी है कंट्री का, ठीक, वट एवर द नंबर एंड अमाउंट ऑफ द जीडीपी मीन्स वट एवर द प्रोडक्शन दैट वी हैव, राइट, और उससे ज्यादा अगर डेट है हमारे पास, तो उस डेट को चुकाने के लिए कितना जीडीपी में प्रोडक्शन हो रहा है हमारे पास, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो। मतलब अगर सिंपल में पूछो कि आपकी आमदनी कम है और कर्ज ज्यादा ले रखा है आपने, इसका मतलब होता है डेट टू जीडीपी रेशियो। ऐसे सिंपल टर्म्स में आप समझो, ठीक है, तो आपको समझ में चीजें आने लगेंगी, राइट। हैड आल्सो शॉट अप टू क्लोज टू, अब यहाँ पे लिखा है क्लोज टू 90%, बट ये 89 पॉइंट समथिंग था, यहाँ पे क्लोज टू लिखा है, अप टू क्लोज, राइट, अप टू क्लोज टू 9। तो अगर आप 89.5 से ऊपर के डिजिट को हम जो है मतलब एक नेक्स्ट परसेंटेज में काउंट कर लेते हैं फुल परसेंट, तो यहाँ पे 90% है, तो ये बढ़ गया था, डेट टू जीडीपी रेशियो 90% हो गया था, ठीक है, एट द एंड ऑफ 2020 बिकॉज ऑफ द कोरोना, राइट, क्योंकि 19 में स्टार्ट हुआ और 20 में वो जो है बहुत ज्यादा पीक पे था। सो लाइकवाइज, राइट। सो अब देखिए इकोनॉमी में कैसे चीजों को ऐड करते हैं, 15 फाइनेंस कमीशन हो गया, यहाँ पे डेट टू जीडीपी रेशियो हो गया, ठीक है ना, इसमें कोरोना वाला भी क्राइसिस आएगा, तो कैसे ये करता है। फिर मेनी स्टेट्स शो लार्ज फिजिकल इम्बैलेंसेस, राइट। अब बहुत सारे स्टेट जो है लार्ज फिजिकल इम्बैलेंस, फिजिकल मतलब क्या होता है, फायदा या नुकसान, ठीक है ना, घाटा, तो इसमें यहाँ पे इसका मतलब क्या है, फिजिकल इम्बैलेंस मतलब वित्तीय मतलब पैसे, मतलब क्या है, टैक्स, सिंपल में समझो टैक्स में जो है इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में इकोनॉमी ठीक ठाक काम कर रही थी, कुछ में बहुत ही ज्यादा ठप पड़ गई थी, तो उनको टैक्स नहीं मिला, तो इम्बैलेंस हो गई चीजें ना, बैलेंस नहीं रही, ऊपर नीचे हो गई, राइट, तो ऐसे समझो फिजिकल इम्बैलेंस हो गया, ठीक है। नाउ द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस, इसके बाद इसको समझ के देखते हैं। द 14th फाइनेंस कमीशन हैड raised the share of states in the divisible pool of central taxes to 42% from 32%। जब 14th फाइनेंस कमीशन आया तो उसने क्या किया, जो सेंटर का मींस सेंटर जितने भी टैक्सेस लेता है तो उसका एक पूल होता है, तो उसको बोलते हैं डिविजिबल पूल। उसमें क्या होता है, सेंटर को जितने भी टैक्स लेता है उसमें से एक हिस्सा वो स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो सेंटर सपोज करो आपकी फादर है और जितने स्टेट्स हैं वो क्या चिल्ड्रन है, तो सेंटर जब सारे पूरे कंट्री से जब वो स्टेट जितने भी वो टैक्सेस को कलेक्ट करता है तो वो अपने चिल्ड्रंस में बांट देता है, ठीक है। तो वो पहले 32% था, फिर बाद में उसको जो है 14th फाइनेंस कमीशन में उसको 42% कर दिया, मतलब 10% की इंक्रीज कर दी गई थी, ठीक। मतलब अब स्टेट्स को 14th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से 10% ज्यादा टैक्स को जो है शेयर करना पड़ेगा, ठीक है, ये कर दिया था। सो दिस इज द टॉक ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन, राइट। सो अब इसको कैसे नोट्स बनेंगे, देखिए यहीं से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। अब इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो कितना था, 84% ऐसे करके था, ठीक है। अब ये जो है कब का था, इकोनॉमिक सर्वे बताया 2022-2023 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, मतलब ये 2021-2022 का ये मतलब डेटा है, क्योंकि एक साल पीछे का एक है ना हमेशा मतलब इकोनॉमिक सर्वे होता है, ठीक है। तो ये हमें हल्का हल्का पता होना चाहिए, हाँ इंडिया का जेट टू जीडीपी रेशियो कितना था, 84 था, अब कितना हो गया है, अप्रॉक्स 90%, मींस 89 पॉइंट समथिंग है, तो ये समझ लो 90%, तो आप समझो 6% का इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये इंडिया के लिए अच्छा साइन नहीं है इकोनॉमिक, है ना, इकोनॉमिक फ्रंट पे, राइट। अब लार्ज फिजिकल इंबैलेंस है, जो कि मैंने आपको समझा दिया कि किसी स्टेट में अच्छी कर रही थी जीडीपी, किसी में नहीं कर रही थी, राइट। तो नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि 32% किया गया था कि मतलब शेयर करेगा, फिर उसके बाद इसको 14th फाइनेंस कमीशन में 42% कर दिया गया, ठीक है। देन दिस वाज रिवाइज्ड टू 41% व्हेन द नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया वाज रिड्यूस्ड टू 28%। अब अगर आप न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं, आपका दिमाग अगर लगता है कि हाँ आईएएस के लेवल का है, तो आप इस लाइन से कनेक्ट करिए कि जब जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया गया था, तो कब किया गया था, 5 अगस्त आई थिंक 2019 को, राइट। सो उसमें क्या एक स्टेट कम हो गया था, पहले जो हमारे इंडिया में पूरा एक स्टेट था ना, तो इन दोनों को यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया, तो जो हमारे स्टेट थे वो 29 से 28 स्टेट हो गए, तो उसकी वजह से इसको रिवाइज कर जो 42% का रिकमेंडेशन दिया था फाइनेंस कमीशन ने, 14th फाइनेंस कमीशन ने, 42 से उसको 41 कर दिया गया, क्योंकि वन स्टेट हमारा रिड्यूस हो गया था, तो ये इसका मतलब है, राइट। तो ऐसे करके चीजों को आप समझिए, राइट। अब ये चीजें लिखी नहीं है, बट यू शुड बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द बैकग्राउंड ऑफ व्हाट इज रिटन ऑन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ, राइट, टू मेक द अंडरस्टैंड ऑफ द ऑडियंस। सो दिस इज व्हाट द कन्वेंशन ऑफ द ऑथर, राइट। सो हाउएवर द सेंटर कुड मैनेज द सिचुएशन बिकॉज ऑफ द विड्रॉल ऑफ प्लानिंग कमीशन ग्रांट। हाउएवर, हाँ ठीक है, हालांकि द सेंटर कुड मैनेज द सिचुएशन बिकॉज ऑफ द विड्रॉल ऑफ प्लानिंग कमीशन ग्रांट। तो जो प्लानिंग कमीशन को जो ग्रांट की गई थी उसको सेंटर ने निकाल लिया, क्योंकि प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश कर दिया गया था, राइट। तो सेंटर इतना जो है 32% से 42% मतलब उसको मतलब जो है
शेयर करना था स्टेट्स के बीच में, तो वो शेयर कर पाया, ठीक है। क्योंकि अचानक से अगर किसी चीज़ में 10% की बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ जाती है तो कैसे कर पाओगे, राइट। तो जो प्लानिंग कमीशन को जो ग्रांट दी गई थी, तो प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश कर दिया गया था। किस ईयर में एबॉलिश किया गया था और उसके क्या बनाया गया था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, नीति आयोग बनाया गया। तो किस ईयर में किया गया था, ये सब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, राइट। Then there may not be a strong case for recommending any further increase in the state's share of central taxes in view of the center's large fiscal imbalances. तो इसका टोटल मतलब यह है कि अभी जो 16 फाइनेंस कमीशन आने वाला है, इसमें स्टेट्स को ये 42% से ज़्यादा का शेयर ना ही होने की संभावना है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। स्टोरी की तरह सुनिए आप इसको, राइट। देन अलॉन्ग साइड, इसके साथ ही साथ, अ री एग्जामिनेशन ऑफ द रोल ऑफ नॉन शेयरेबल सेसेस एंड सरचार्जेस इज रिक्वायर्ड। अब क्या है, अब इसको एक बार फिर से री एग्जामिन करेगा 16th फाइनेंस कमीशन की जो नॉन शेयरेबल जो हमारे सेसेस हैं एंड सरचार्जेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाती है एक्सक्लूसिवली, राइट। तो उसको जो है उसका क्या रोल है, उसका क्या रोल है कि अगर सेंटर मान लो कि सेस में से भी शेयर करने लगेगा तो क्या ये 42% तक कर पाएगा या आगे कर, तो ऐसा करके ये एक इशू है। तो जिसको हम देखेंगे कि 16th फाइनेंस कमीशन इस चीज को देखेगा, राइट, कि इसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं है, राइट। सो हमने इसका एक नोट्स एक हर तरीके से थोड़ा बहुत हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। तो मैंने लिख दिया ना अभी 32, यहाँ पे 35% था 2019 में, फिर क्या हुआ 2021 में क्या हुआ, फिर 31% था, फिर ये 12.8% का इंक्रीज हो गया था, क्योंकि शेयर ऑफ द सेसेस एंड सरचार्जेस टू 80.5% ऑफ द सेंटर्स जीटीआर ड्यूरिंग 21-24, इस वजह से हो गया था, ठीक है। अब सेंट्रल कमीशन क्या कर सकता है, व्हाट फाइनेंस कमीशन कैन डू। अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो जाती है कि सेंटर जो फाइनेंस कमीशन है वो क्या कर सकता है। सो सेंटर्स लार्ज फिस्कल इम्बैलेंसेस हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए री एग्जामिनेशन ऑफ द रोल ऑफ द नॉन शेयरेबल सेसेस एंड सरचार्जेस आर रिक्वायर्ड, राइट। तो ये चीज़ों को देखना है। सो क्या है, 13 फाइनेंस कमीशन में क्या था, दिस शेयर वॉज 9.6%, ठीक है। तो ऐसे करके अभी देखिए, बस सिर्फ इतना ही नोट्स है इसमें से, और इसमें से भी अभी आधे से ज़्यादा खत्म हो जाएगा। तो आपको एट द एंड समझ में आएगी आंसर कैसे लिखते हैं, राइट। Then here during 2021 to 2023-24, there is base year. B means base year. The effective share of states in the center's gross tax revenue means center में सिंपल भाषा में सेंटर जितना टैक्स मतलब जो है होता है, सेंटर के पास जितना भी टैक्स आता है उसमें से स्टेट्स को कितना शेयर देता है वो, ठीक है ना, वो लगभग 31% था, 31% था, विच वॉज सिग्निफिकेंटली लोअर, जो कि काफी नीचे था देन द करेस्पॉन्डिंग शेयर ऑफ नियरली 35% ड्यूरिंग 2015-16। तो अब देखिए यहाँ पे इसका नोट लिख दिया कि 2021, ठीक है ना, और 2023 में कितना था, 30% था, 31% था, जो कि 2019 और 20 में कितना था, 35% था। तो यहाँ पे ज्यादा था 2019-20 में, और 2020-21 में कम हो गया। तो क्यों, क्योंकि कोरोना की वजह से, सिंपल। तो ये छोटे छोटे डेटा है ना, छोटे छोटे, बस इससे ज्यादा डेटा की जरूरत नहीं, बस इतना आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ मतलब किस टाइम पे कम था और किस टाइम पे ज्यादा था, ठीक है। ये हमारे समझ में आ गया, ऑलराइट। सिंपल सा मतलब यही है, ठीक है, विच वॉज सिग्निफिकेंटली लोअर देन, राइट। एंड दिस वॉज ड्यू टू इनऑर्डिनेट मीन्स थोड़ा सा असामान्य, अनकॉमन तरीके के इनऑर्डिनेट इंक्रीज इन द शेयर of the cesses and surcharges to 18.5% of the center's GTR during 2021 to 2023-24 BCR from the 12.8% during 15-16। तो मतलब यही है कि कुछ बहुत ज़्यादा सेसेस में इंक्रीज कर दिया गया जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। बस देख के घबराना नहीं, चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है हमें ये पता नहीं क्या वीड आउट कर सकते, क्या हटा सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस हैवी रिलायंस ऑन सेसेस एंड सरचार्जेस रिक्वायर्ड स्क्रूटिनी बाय द 16th फाइनेंस कमीशन। अब देखिए ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले क्या है कि जो हमारा 16th फाइनेंस कमीशन है वो री एग्जामिन करेगा रोल, किस चीज़ का रोल करेगा, जो नॉन शेयरेबल सेसेस एंड सरचार्जेस हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, दी हैवी रिलायंस, मतलब बहुत ज़्यादा जो सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बहुत ज़्यादा सेसेस और सरचार्जेस लगा रही है, तो उसकी स्क्रूटिनी करना भी ज़रूरी है, राइट। उसकी स्क्रूटिनी करना भी ज़रूरी है। तो उसकी स्क्रूटिनी करेंगे तो हमें चीज़ों को पता चलेगा हाँ भाई क्या है, ठीक है। तो ये दोनों मिलाकर के एक ही पॉइंट है, तो इसलिए इसका भी ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि व्हाट फाइनेंस कमीशन नीड्स टू डू, राइट। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट, कि सॉल्यूशंस क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, राइट। देन what we can understand here is that we start reading kind of things like this, then one option is to freeze, one option is to freeze the share of cesses and surcharges to some base numbers। मतलब ये बता दें कि हाँ कि इतने परसेंटेज से ज़्यादा सेंटर जो है सेसेस और सरचार्जेस को शेयर नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये उस पर एक तरीके से एक वो बना देगा, बेस नंबर बना देगा फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो एक ये हो गया। तो अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आएगी, फाइनेंस कमीशन जो बन रहा है तो वो क्या देखेगा कि जो सेसेस हैं और सरचार्जेस हैं, ठीक है ना, उस पर जो हैवी रिलायंस है बहुत ज़्यादा, जो सरकार उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरचार्जेस बढ़ा देंगे तो हमारा मतलब जो है जो बाकी टैक्सेस हैं उनकी जो खाना पूर्ति कर देगा ये। तो ये सही है कि नहीं है, और इसको स्टेट्स में कैसे शेयर करते हैं, ये करते हैं तो होता नहीं है, तो कैसे करते हैं, ये सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, इन द पीरियड अंडर 13th फाइनेंस कमीशन दिस शेयर वाज जस्ट 9.6%। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए कितना है, 12.8% है, और 13 फाइनेंस कमीशन कितना था, 9.6%। बट ये थोड़ा सा पहले की भी बात है, ठीक है। परहैप्स अ 10% अपर लिमिट ऑफ द शेयर ऑफ सेसेस एंड सरचार्जेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेंटर्स जीटीआर में भी रिकमेंडेड। हो सकता है, तो अब इस केस में क्या कर सकता है कि 10% की अपर लिमिट लगा सकता है, ठीक है ना, 16 फाइनेंस कमीशन की, इससे ज़्यादा आप शेयर नहीं कर सकते, राइट। यहाँ हो गया टू मेक इट बाइटिंग, मतलब इसको सही करने के लिए कि लगे हाँ ये सही है, टू मेक इट बाइटिंग द शेयर ऑफ द स्टेट्स मस्ट बी इंक्रीज्ड इफ द प्रोपोर्शन क्रॉसेस 10%। अगर 10% से ज़्यादा कलेक्शन हो जाता है सरकार के पास तो इसको थोड़ा और इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है, ऐसा भी वो रिकमेंड कर सकता है। दस देयर विल बी वन प्रोपोर्शन से 42% इफ सेसेस, लाइक से 42% इफ सेसेस एंड सरचार्जेस एक्सीड 10%। अगर 10% से ज़्यादा हो जाते हैं सेसेस एंड सरचार्जेस तो क्या करते हैं, 42% तक किया जा सकता है, ठीक है। से शेयर ऑफ 41% इफ दे आर लोअर, अगर 10% से ज़्यादा शेयर है, मीन्स सेसेस और सरचार्जेस को ज़्यादा कलेक्ट कर लेती है 10% से ज़्यादा, तो 42% शेयर करेगा सेंटर सारे स्टेट्स के साथ। अगर 10% से नीचे करता है तो 41% शेयर करेगा, राइट। बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, राइट। द फॉर्मूला में बी नुआंस्ड बाय द 16th फाइनेंस कमीशन विद द हेल्प ऑफ द लेटेस्ट डेटा। तो एक नया फॉर्मूला बनाएगा अभी लेटेस्ट के डेटा को देखते हुए। एन इशू ऑफ कंसर्न इन रीसेंट ईयर्स हैज़ बीन द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया है कि क्या है, ये देखिए यहाँ पे कि अगर हमको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, कीपिंग इन माइंड द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, राइट। तो देखिए जो भी चीजें आ रही तो यहीं से आपको क्वेश्चन बनाना, ऐसा ही क्वेश्चन मतलब जो आपका माइंडसेट एग्जाम ओरिएंटेड होगा तो ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, राइट। अदरवाइज आपका माइंड काम नहीं करेगा, फिर आपको ऐसे अलर्ट रहना है, राइट। और आप हमेशा डिपेंड मत रहिए कि कोई आपको न्यूज़पेपर पढ़ाए या कोई कुछ, खुद से आपको डिपेंडेंसी अपनी खत्म करनी है। कुछ दिन के बाद आप 1 महीने हेल्प लीजिए, उसके बाद खुद से अपना माइंडसेट अपना डेवलप करिए, राइट। ऐसे करके पढ़ेंगे आप तभी सिलेक्शन होगा। कीप दैट थिंग इन योर माइंड। And if not been able to understand, or if you have not been able to consistent in your studies since like 4 to 5 6 months, and you are just like making a kind of that I'm studying, then leave the preparation, don't waste your time, energy, money, youth, everything, okay. Go and look for something else, but if you're serious then start studying right now, okay. So goods and services tax भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो टोटल डिविजिबल पूल है वो, मतलब जितना सरकार टैक्स कलेक्ट कर सकती है, जो वो टारगेट सेट करती है उतना नहीं हो पाता है, तो फिर वो स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाती, तो फिर स्टेट्स और सेंटर में क्या होता है, फिस्कल फेडरलिज्म सही से नहीं हो पाता है, राइट। तो फिस्कल फेडरलिज्म मैंने लिख दिया जो कि हमारे पॉलिटी का भी पार्ट है, तो फिस्कल इम्बैलेंसेस हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये लिखा है। और फिस्कल फेडरलिज्म देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है फिस्कल फेडरलिज्म, ठीक है ना। तो मतलब फेडरलिज्म मतलब क्या होता है, एक आइडियोलॉजी होती है ना, तो इसका मतलब क्या, सेंटर स्टेट रिलेशन। तो फिस्कल मतलब वित्तीय जो संबंध हैं राज्य सरकारों के बीच में और स्टेट के बीच में, ठीक है, वो हेल्दी नहीं रहते हैं, ठीक है, क्योंकि सरचार्जेस और सेसेस इनकी वजह से और सरकार को इतना ज़्यादा टैक्स कलेक्शन नहीं हो पाता जितना वो टारगेट सेट करती, राइट। तो इससे एक पूरा घुमा फिरा के ओवरऑल व्यू आपको मिल जाएगा, बर्ड लाइक ईगल आई व्यू, राइट। फॉर्चुनेटली दिस इज नॉट एन इशू नाउ। अब थोड़ा थोड़ा सही हो रहा है पहले से, ठीक है ना। जीएसटी कलेक्शंस हैव मेंटेन्ड गुड बॉयंसी इन द लास्ट 2 years, ठीक है। तो पिछले 2 सालों में जीएसटी अच्छा खासा कलेक्ट हो रहा है, राइट। सो जीएसटी स्टिल नीड्स रीस्ट्रक्चरिंग टू मेक इट अ गुड एंड सिंपल टैक्स। जैसे बोलते हैं ना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट। तो सर्विसेज पे जो टैक्स लगेगा तो वहाँ सिंप्लीफाई करना है कि एक मतलब अच्छा टैक्स बनाए, ठीक है। नाम को खाली मिसनोमर को चेंज किया गया है, लिखने का कोई मतलब थोड़ा सा तरीका है, राइट। सो द शेयर ऑफ इंडिविजुअल स्टेट्स, अब देखिए जैसे ये पैराग्राफ लिखा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ना, कैसे है, जो लोग पहली बार मतलब रीडिंग करें तो हाउ टू रीड दिस, राइट। अगर एक सेंटेंस लिखा है फुल तो कैसे उसको मतलब छोटे छोटे सेंटेंस में आप उसको ब्रेक कर सकते हैं पार्ट्स में, देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग द इंग्लिश, राइट। अब देखो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती बट जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप अगर इसको रीड करेंगे देन यू विल हैव सम आइडिया। देखो द शेयर ऑफ इंडिविजुअल स्टेट्स, मतलब हर स्टेट्स के अपने अपने जो शेयर हैं, ठीक है ना। द शेयर ऑफ इंडिविजुअल स्टेट्स इन द सेंटर्स डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस, जो सेंटर जितना भी टैक्स कलेक्ट करता है उसमें से जो हर स्टेट का शेयर है, इज डिटरमिन्ड बाय अ सेट ऑफ इंडिकेटर्स, वो निर्धारित किया जाता है कुछ ये इंडिकेटर्स हैं इनको देखते हुए। अब वो कौन कौन से हैं, दैट इंक्लूड्स पॉपुलेशन, कि उस स्टेट की पॉपुलेशन क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है उस स्टेट की, एरिया क्या है उस स्टेट का, ठीक है ना, इंसेंटिव रिलेटेड फैक्टर्स सच एज फॉरेस्ट कवर कितना है उस स्टेट का, एंड डेमोग्राफिक चार्ज, ठीक है ना। डेमो मतलब जनता कितनी, पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है ना, ये देखना है। तो ये सारे मुद्दों पर जब सेंटर स्टेट, जो सेंटर के पास जितने भी टैक्सेस आते हैं, तो जब वो स्टेट के साथ शेयर करता है तो इन चीज़ों को वो मुद्दा बना के शेयर करता है, ठीक है। ये इशूज़ को ध्यान में रखकर शेयर किया जाता है, तो ये भी आपको पता चल गया, राइट। सो इन केस ऑफ पर कैपिटा इनकम इट इज द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेट्स पर कैपिटा इनकम फ्रॉम अ बेंचमार्क, राइट।
usually kept at the average per capita income of the top three states that is used as determining the factor। तो जब ये करा जाता है तो इसमें से टॉप थ्री मतलब स्टेट्स को देख लेते हैं, उसी हिसाब से उसको उसी हिसाब से क्या करते हैं, उसी हिसाब से अपने शेयर्स को जो है स्टेट्स को शेयर कर देता है, ठीक है, सेंटर। अब इसमें क्या है, इस पर भी देखिए आपने देखा होगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सारे तो थोड़ा सा डेवलप्ड स्टेट हैं इंडिया के अंदर, तो इनको दिक्कत होती है। तो क्या बोलते हैं, डिस्टेंस क्राइटेरिया एक होता है, डिस्टेंस क्राइटेरिया होता है। उसमें क्या होता है कि इट इंप्लाइज रिलेटिवली लार्जर शेयर्स फॉर रिलेटिवली लोअर इनकम स्टेट। अब जो लोअर इनकम स्टेट्स हैं उनको ज़्यादा शेयर देने, मतलब उनको ज़्यादा शेयर मिल जाता है, तो इससे जो स्टेट्स ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म करें उनको कम शेयर मिलता है, तो इसलिए वो गुस्सा है कि भाई सबको बराबर दो, ठीक है। एट प्रेजेंट इट हैज़ द हाईएस्ट वेट ऑफ 45%, ठीक है ना, मैक्सिमम 45% का वेट है इस वक्त, बट इट हैड एन इवन हायर वेट प्रीवियसली, इससे ज़्यादा पहले हुआ करता था। मेनी ऑफ द रिचर स्टेट्स हैव ऑर्ग्यूड, देखिए रिचर स्टेट थे ना, तो रिचर स्टेट कौन से हैं, तमिलनाडु या साउथ इंडिया के, मोस्टली ऑल ऑफ द स्टेट्स, राइट, हैव ऑर्ग्यूड फॉर अ लोअरिंग ऑफ द वेट गिवन टू दिस क्राइटेरिया, मतलब ये 45% से कम करिए इसको, राइट। सो हाउएवर ड्यू अटेंशन नीड्स टू बी पेड टू द नीड्स ऑफ द लोअर इनकम स्टेट्स। लेकिन फिर भी ये कहा जाए कि जो लोअर इनकम स्टेट्स हैं, मतलब जो भी जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, ठीक है, ये जो लोअर इनकम स्टेट्स हैं इनको ज़्यादा अटेंशन दिए जाने की भी ज़रूरत है। These states are expected to provide a relatively larger share of demographic dividend in India in future, and provided attention is paid to the educational and health needs of their population, it may be useful to freeze the weight to distance criterion at the current level or even reduce it to 40%, but some upward adjustment in the resources transferred to the poor states may be done through grants। अब यहाँ से यहाँ तक का कहने का मतलब है कि जो पुअर स्टेट्स हैं, ठीक है ना, उनको ज़्यादा शेयर इसलिए दिया जाना चाहिए कि ये देखना चाहिए कि उनके पास क्या है, ज़्यादा जनसंख्या एक तो, ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड अच्छा है, ये सोच करके उनको दिया जाना चाहिए। बट इसके साथ इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो पैसा, जो शेयर, जो टैक्स दिया जाए, जो मतलब जो टैक्स का जो शेयर जो है, जो रिलेटिवली लोअर स्टेट्स में दिया जा रहा है, लोअर इनकम स्टेट्स में, वहाँ पर एजुकेशन की फैसिलिटीज़ अच्छी हों और हेल्थ की फैसिलिटीज़ अच्छी हों, जिससे कि जो पॉपुलेशन है वो एजुकेशन पे ध्यान दे पाए और वो सिर्फ पॉपुलेशन में ना रह जाए, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड में चेंज हो जाए, ठीक है ना, जिससे कि फ्यूचर में, इंडिया के फ्यूचर में वो हेल्पफुल हो सके, राइट। तो अगर ऐसे करेंगे तब, अगर ये सारे स्टेट जो लोअर इनकम स्टेट्स हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, स्ट्रेंथन हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि फिर हम ये 45% से जो क्राइटेरिया उसको 40% भी कर सकते हैं। तो सिर्फ इसका ये मतलब है। तो यहाँ तक तो क्या फिस्कल फेडरलिज्म की बात चल रही है कि स्टेट्स के बीच में क्या चल रहा है, ठीक है ना। Then comes, in fact, equalization of the provision of education and health services should be prioritized in overall schemes of resources transfer। अब अगर खाली यही क्राइटेरिया देखना है कि एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज को ही देखना है, तो इसमें मैं देखना चाहिए कि इनको कि जितनी भी स्कीम्स होती हैं जो मतलब स्टेट बनाता है और जो सेंटर बनाते हैं, तो उसमें भी इन सारी स्कीम्स को ज़्यादा जो है ज़्यादा मतलब अच्छे से प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज को एक और पुश मिल सके ऐसे स्टेट्स में, राइट। Then, the transfer of resources to individual states may be guided by the equalization principles using a limited number of criteria such as population, area and distance, supplemented by suitable scheme grant। तो इसमें क्या देखना चाहिए, अगर आप ज़्यादा उनको ग्रांट दें तो आप देखिए, एक तो पॉपुलेशन, एरिया देखिए कितना बड़ा है, डिस्टेंस देखिए क्या है, ठीक है ना, एंड सप्लीमेंटेड बाय द सूटेबल स्कीम ग्रांट। तो जो स्कीम चला रहे हैं उसमें से भी ग्रांट करिए आप, जिससे कि ये 45% से लोअर आ सके और जो हाई इनकम स्टेट्स हैं उनको भी शेयर मिल सके, राइट। सो द इक्विलाइजेशन प्रिंसिपल इज कंसिस्टेंट विद बोथ इक्विटी एंड एफिशिएंसी। तो इक्वलाइजेशन का प्रिंसिपल का मतलब ये है कि इक्विटी समानता भी हो और उसमें, और आप जब दें तो उसका इफिशिएंटली यूज भी हो, मतलब उसका रिजल्ट निकल के ऐसे, राइट। इट इज यूज्ड इन फेडरेशन सच एज कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। तो अब ये कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी यूज है, तो ऐसे एग्जाम्पल्स को आपको कोट करना है यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे एग्जाम्पल्स को आपको कोट करना है यहाँ पे, ऑलराइट। तो देखिए यहाँ पे ऐसे लिख दिया गया है कि ये इंडिविजुअल स्टेट्स के बाद में ये देखिए सप्लीमेंटेड बाय अ सूटेबल स्कीम ग्रांट। तो स्कीम, अच्छे स्कीम के ग्रांट के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो इस तरीके से आप चीज़ों को ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, सिंपल सी। सो इट इज़ यूज इन फेडरेशन, यहाँ पे होगा कनाडा। द बेसिक कंसिडरेशन ऑफ रिफ्लेक्टिंग नीड्स, मतलब जो अभी की जो ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए, कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड इक्विटी कंसिडरेशंस कैन ऑल बी रिफ्लेक्टेड through these three criteria provided there is a more fine tuning। तो इन्हीं तीन क्राइटेरियाज को, पॉपुलेशन, एरिया एंड डिस्टेंस को ध्यान में रख के देखना चाहिए और फाइन ट्यूनिंग करना चाहिए जो 16th फाइनेंस कमीशन आने वाला है। अब क्या रिकमेंडेशन वो कर सकता है, डेट टू जीडीपी रेशियो फॉर द कंबाइंड अकाउंट ऑफ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट हैड पीक्ड एट 89.8% इन 2021। अब देखिए 89.8% है, जो कि स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा था क्लोज टू 90%, ठीक है ना, तो 89.9% है टू बी प्रिसाइज, ठीक है, इतना था डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ विद द सेंटर्स जीडीपी रेशियो एक्सक्लूडिंग एनी ऑन लेंडिंग टू द स्टेट। मतलब सेंटर का जो जीडीपी डेट टू रेशियो था, जिसमें जो स्टेट को लेंडिंग करते हैं पैसा, उसको छोड़ करके वो कितना था,
58.7% था और स्टेट का क्या था 31% था, ठीक है। वाइल दीज नंबर्स हैव बिगन कमिंग डाउन, लेकिन अब ये नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है ना, अब ये नंबर नीचे जा रहे हैं, मतलब 30% से नीचे आ रहे हैं और ये 58% से भी नीचे आ रहे हैं। सो क्या है, दीज आर स्टिल कंसिडरेबली अबव द करस्पॉन्डिंग फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट नॉर्म्स ऑफ 40% एंड 20%। तो ये सेंटर का है, ये 58% की जगह 40% के अंदर होना चाहिए और 31% जो स्टेट का ये 20% के आसपास होना चाहिए। ये जो है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट जो एक्ट है उसके अंदर में लिखा गया है, जैसा कि 2018 में अमेंडमेंट किया गया था, राइट। तो ये देखिए यहाँ पर आप इसको भी ऐड कर सकते हैं, फिजिकल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट 40% 20% एज अमेंडेड इन 2018, राइट। अब क्या है, सेंटर्स एफआरबीएम नीड्स टू बी री एग्जामिन्ड। अब इस चीज को फिर से जो है सेंट्रल का जो है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट जो एक्ट है उसको फिर से री एग्जामिन करने की जरूरत है, राइट। इन 2021 द सेंटर्स फिजिकल डेफिसिट हैड शॉट अप टू 9.2% ऑफ द जीडीपी एंड दैट ऑफ स्टेट्स 4.1%. सो इन व्यू ऑफ द लार्ज डिपार्चर्स ऑफ द डेट एंड फिजिकल डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो फ्रॉम देयर करस्पॉन्डिंग नॉर्म्स एंड द रिडक्शन ऑफ द स्टेट्स जीडीपी target to 20%, the 2018 amendment to the center's FRBM needs to be re-examined। मतलब ये जो इतना ऊपर नीचे हो रहा है तो इसलिए सेंटर के FRBM को फिर से री-एग्जामिन करने की जरूरत है, बस इतना इसका मतलब है, राइट। दिस वाज आल्सो रिकमेंडेड बाय द 15th फाइनेंस कमीशन, राइट। सो इट वाज आल्सो रिकमेंडेड बाय द, सो ये जो मतलब इसको री-एग्जामिन करना चाहिए तो ये रिकमेंडेड बाय द 15th फाइनेंस कमीशन आल्सो। तो आप देखिए यहाँ पे आपको हर एक मतलब जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन है 13th फाइनेंस कमीशन का, यहाँ पे क्या मेंशन है 15th फाइनेंस कमीशन का, और अभी 16th फाइनेंस कमीशन आने वाला है, राइट। तो ऐसे करके जो इंपॉर्टेंट चीज हमको लिखिए। अब यहाँ पे देखिए the 12th Finance Commission had recommended a target of 28% consistent with an underlying nominal GDP। नॉमिनल जीडीपी मतलब क्या होता है, विदाउट एडिंग द इन्फ्लेशन, ठीक है ना। और रियल जीडीपी क्या होता है, एडिंग द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को जोड़ करके, महंगाई को ऐड करके देखते हैं कितना है, ठीक है ना। सो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अगर हमारी कितनी है 12% है तो इसके साथ 28% होना चाहिए। इट इज ऑल्सो क्लियर दैट द एडजस्टमेंट नीडेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज लार्जर देन दैट फॉर स्टेट गवर्नमेंट। कि मतलब एडजस्टमेंट जो मतलब देखना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा देखना चाहिए, ना कि जो है स्टेट्स के लिए, ठीक है। एट द, ये हमारे कोई खास काम का नहीं, ठीक है। एट द सेम टाइम अ फ्यू स्टेट्स गवर्नमेंट अपीयर टू हैव रिलेटिवली लार्जर डेट एंड फिजिकल डेफिसिट नंबर्स रिलेटेड टू देयर जीएसडीपीस। मतलब क्या है कि हमें देखने को मिला है जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनमें फिजिकल डेफिसिट रिलेटिवली ज़्यादा है। क्यों है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट टू कंसर्न्स अपीयर, मतलब दो ऐसे मुद्दे जिनकी वजह से हो सकता है। तो क्या है, द प्रोलिफरेशन ऑफ सब्सिडीज, मतलब सब्सिडीज बहुत ज़्यादा दे रहे हैं सारे स्टेट्स, ठीक है ना, इसकी वजह से उनका फिजिकल जो डेफिसिट है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। एंड सेकंड क्या है, री इंट्रोडक्शन ऑफ द ओल्ड पेंशन स्कीम। तो बहुत सारे स्टेट्स ने ओल्ड पेंशन स्कीम को री इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो उसके लिए सरकार को बजट चाहिए, तो उसके लिए बजट अलग करना पड़ेगा। तो जो पैसा सरकार अपने काम में लगा सकती थी अब उसको इस चीज़ों के लिए रखना पड़ रहा है, तो सरकार के पास हो जाती है पैसे की कमी, इसकी वजह से उसका फिजिकल इम्बैलेंस हो जाता है, राइट। तो ये भी दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है। इन स्टेट्स विदाउट अ क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। और अब इनको मतलब सरकार बोल तो देती है हाँ हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, हम जो है सब्सिडीज को बढ़ा देंगे, ठीक है ना, बट उसको क्या है कि विदाउट क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग, मतलब ये नहीं देखते कि इसके लिए पैसा आएगा कहाँ से, ठीक है ना, इसके लिए पैसा आएगा, ये नहीं देखते। एंड द रिजल्टेंट फिजिकल बर्डन, और इसकी वजह से क्या होता है, रिजल्टेंट क्या होता है, मतलब जो निकल के आता है क्या होता है, फिजिकल बर्डन बढ़ जाता है, राइट। सो ऑफन सच सब्सिडीज आर सॉट टू बी फाइनेंस्ड बाय द रेजिंग द फिजिकल डेफिसिट। तो क्या होता है कि पहले मान लो वित्तीय घाटा सोचते थे कि चलो मतलब 5% रखेंगे, फिर जब नहीं समझ पाते बोलते हैं अच्छा 6% रख लेंगे, तो और बढ़ा देते हैं, मतलब अपने आप को दिल का दिलासा देने के लिए, बट जो एक्चुअल इशू है उसको नहीं सॉल्व करते, राइट। सो अब जो रिफॉर्म्स हैं वो कौन कौन से, बहुत ही दो चीज़ें इसमें लिखी है इंपॉर्टेंट, बस ये इतना छोटा ये जो लिखा है इसका कोई मतलब नहीं ज़्यादा। तो रिफॉर्म्स वर्थ परस्यूइंग, मतलब ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो 16th फाइनेंस कमीशन को लाने चाहिए, दोज आर वर्थ, ठीक है। वो क्या है, वन इनोवेशन विच में बी रिलेवेंट इन दिस कंटेक्स्ट इज टू सेटअप अ लोन काउंसिल। एक लोन काउंसिल को सेटअप किया जाना चाहिए, तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये आप लिख सकते हैं कंक्लूजन में कि टू सेटअप अ लोन काउंसिल, ठीक है ना, रिकमेंडेड बाय दी 12th फाइनेंस कमीशन। तो ये 12th फाइनेंस कमीशन ने भी रिकमेंड किया था, राइट। तो एक तो जो 16th फाइनेंस कमीशन है वो क्या करे, सेटअप अ लोन काउंसिल एज रिकमेंडेड बाय द 12th फाइनेंस कमीशन। दिस इंडिपेंडेंट बॉडी शुड ओवरसी द लोन मैग्नीट्यूड्स एंड प्रोफाइल्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब ये लोन देखेगा कि कितनी ज़्यादा मात्रा में लिए गए हैं और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की लोन प्रोफाइल्स क्या क्या हैं, ठीक है, ये देखेगा। और जिसको रिकमेंड किसने किया था, 12th फाइनेंस कमीशन ने किया था, राइट। सो ये एक बार 16th फाइनेंस कमीशन को अपने दिमाग पे लेना चाहिए चीज़ों को। अब देखिए यहाँ पे 16th फाइनेंस कमीशन की बात की जा रही है, उसमें क्या था, मतलब क्या हो सकता है, 16th फाइनेंस कमीशन शुड एग्जामिन द सब्जेक्ट ऑफ नॉन मेरिट सब्सिडीज। मतलब जो सब्सिडीज दी जाती है उनका मेरिट क्या है, मतलब क्यों दी जा रही है, क्या वो सही है, रीजनेबल है कि नहीं है, राइट, उनको भी ये चेक करेगा। हाउएवर एक्सक्लूजन ऑफ अनजस्टिफाइड सब्सिडीज, और ऐसी सब्सिडीज को हटा दे जो अनजस्टिफाइड है। मतलब अगर ये स्टेट गवर्नमेंट से पूछेगा हाँ भाई आपने इस चीज़ पर सब्सिडी दी है तो क्यों दी, अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट फेल हो जाती है उसका रीजन देने में तो उसको हटा देना चाहिए कि नहीं अब आप इस चीज़ पर सब्सिडी नहीं दे सकते, राइट। वाइल डिटर्मिनिंग ग्रांट्स में कॉज द फाइनेंस कमीशन टू बी कॉट इन प्रॉब्लम, लेकिन अगर ऐसा करेगी तो हो सकता है कि पॉलिटिक्स होने लगे,
ठीक है ना। तो पॉलिटिक्स क्लॉज फाइव में फाइनेंस कमीशन आ सकता है, ये तो एक मतलब अलग सी बात है, पॉलिटिक्स की बात है, ये हमारे एग्जाम से रिलेटेड बात नहीं है। एट द सेम टाइम वन कैन नॉट अफोर्ड टू बी रिलैक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडीज एंड फिजिकल डिफिसिट। मतलब बहुत ज़्यादा रिलैक्स होने की जरूरत नहीं कि हाँ सब्सिडीज तो देते ही रहेंगे या फिजिकल डिफिसिट तो बढ़ता रहेगा, आगे पीछे करते रहेंगे, ये नहीं होना चाहिए। इस पर एक बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए। द फाइनेंस कमीशन शुड बी स्ट्रिक्ट अबाउट स्टेट्स मेंटेनिंग फिजिकल डिफिसिट विद इन लिमिट्स, ठीक है ना। तो स्टेट जो है स्टेट्स को मेंटेन करना चाहिए एक लिमिट में कि हमारा फिजिकल डिफिसिट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी फाइनेंस कमीशन को रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, एक मतलब एक बना देना चाहिए बेस लाइन की, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप। इट शुड प्रोवाइड कैरेट्स टू स्टेट्स मेंटेनिंग फिजिकल डिफिसिट। मतलब जो है कैरेट्स मतलब कुछ अच्छे फेवर्स मतलब जो है 16 फाइनेंस कमीशन को प्रोवाइड करने चाहिए ऐसे स्टेट्स को जो मेंटेन करके रखते हैं अपना फिजिकल डेफिसिट को। फॉर एग्जांपल इंक्लूडिंग फिजिकल परफॉर्मेंस एज द क्राइटेरियन इन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो इनको देगी टैक्स वगैरह, ठीक है, जो शेयर मिलेगा उसमें इनको ज़्यादा मिलना चाहिए। एंड स्टिक्स टू दोज दैट एक्सीड्स फिजिकल डेफिसिट लिमिट्स। और स्टिक मतलब उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना देनी चाहिए कि आपको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे अगर आपने अपना फिजिकल डेफिसिट मतलब आपने अपना वित्तीय घाटा मेंटेन नहीं किया। बाय सुटेबली एक्टिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ बोरोइंग अलाउड। और ये बताएं कि कितना बोरोइंग आप मतलब कितना उधार ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल, आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा डेटा 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 निकल के आया, राइट। आप देखते हैं कि जो ये क्वेश्चन बनाया क्या है कि अब देखिए आपको ये पूरा मतलब स्टोरी समझ में आएगी, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनिए आप। इन व्यू ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन, अब देखिए वहीं का वर्ड्स हैं, ठीक है। इन व्यू ऑफ द 16th प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट, अभी जो आएगी, अभी तो सेटअप नहीं किया, नवंबर में सेटअप किया जाएगा, ठीक है। अब आप इसको देखिए कि ये पॉलिटी में किस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन है और कौन इसको अपॉइंट करता है और ये किसको अपनी रिपोर्ट को सबमिट करते हैं, ठीक है। तो कि ये मतलब ये जाके प्रेसिडेंट को करते हैं या प्राइम मिनिस्टर को करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियरली एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस क्वेश्चंस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट इज गोइंग टू बिकम एंड दिस इज गोइंग टू बी सेटअप इन दिस ईयर ओनली, राइट। ऑन सेंटर्स लार्ज फिजिकल इम्बैलेंसेस। आप सेंटर्स लार्ज फिजिकल इम्बैलेंस मतलब समझ गए ना आप कि जो सेंटर के पास जितना भी टैक्स आता है, ठीक है ना, तो उसमें से सेंटर कितना उनको दे सकता है, वो मतलब 40% या 41% तो है ना। और जो अलग अलग जो भी हमारे स्टेट्स थे उसमें हमने देखा कि भाई कि मतलब 13 फाइनेंस कमीशन ने कितना रिकमेंड किया था, 14th ने कितना है ना, और जो है 11th ने कितना, तो 16th में कितना होना चाहिए, राइट। देन क्या है, फिर एग्जामिन द रोल ऑफ द नॉन शेयरेबल सेसेस एंड सरचार्जेस। तो अगर सरकार अभी आपने देखा होगा यहाँ पे देखिए ये जो मतलब साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं ना, जो मतलब यहाँ पे लोअर जो इनकम स्टेट्स हैं और जो हाई इनकम स्टेट्स हैं, तो क्या है कि उनमें कितना शेयर करते हैं ये, इसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है, हेल्दी फिजिकल फेडरलिज्म, जो सेंटर और स्टेट के रिलेशन खराब होते हैं इसकी वजह से, ठीक है ना। तो जो शेयर और सरचार्जेस है और जो टैक्स है ओवरऑल उसका जो शेयर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए ना, तो उसकी वजह से रिलेशन अच्छे रहे। तो जब सारे स्टेट्स बढ़ेंगे तभी तो सेंटर भी आगे बढ़ेगा, तभी हमारा कंट्री आगे बढ़ेगा, राइट। अगर ये सब कुछ होगा तभी हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमने सपना देखा है वो भी पूरा कर पाएंगे एक टाइम लिमिट के अंदर बाय 2025, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या ध्यान में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिकम हो जाती है कि जीएसटी की परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, तो कि जो अभी पिछले 2 साल से अच्छा करा है बट अभी उसमें और क्या रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है इन चीजों। तो अब देखिए जब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, अब आप इसको पढ़ के ही आप एक बार अपने आप को एक्सप्लेन करके देखिए हाँ कि ये है, तो आपको अगर 40-50% है तो हाँ आप सही पढ़ रहे हो फिर, ठीक है। अब उसमें देखिए अब जो ये नोट्स बनाए इसमें क्या है कि इंडिया का जो भी मतलब डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 84% किसमें था, 2022 और 2023 में था, जो कि इकोनॉमिक सर्वे की रिकमेंडेशन में बताया गया था। अभी कितना है वो 89.9% है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 90% है। फिर क्या है, एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, लार्ज फिजिकल इम्बैलेंस है, जो इशूज हैं अभी इकोनॉमी हमारे, ठीक है, वो 35% थे कितने 2015-16 टू 29% थे और 31% था। तो मतलब जो अभी मतलब ये 2020-21 से लेकर के 24 तक जो है हमारे कितने हो गए 31% है, इससे पहले 35% था, ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो 1920 है कोरोना से पहले का टाइम है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा था। यहाँ पे कोरोना हो गया तो उसकी वजह से कम हो गया उसके बाद, ठीक है। फिर क्या है उसके बाद मतलब ये 2019-20 में इतना था। अब शेयर ऑफ सेसेस एंड सरचार्जेस ऑफ 18.5% सेंट्रल जीटीआर रेवेन्यू। अब जो सेंटर का जो टोटल ग्रॉस जो हमारा टोटल टैक्स मतलब शेयरिंग रेवेन्यू आता है उसमें 18.5% था, ठीक है। अब व्हाट फाइनेंस कमीशन कैन डू, अब देखिए आ रहा है, अब इसका सेटअप हो रहा है तो क्या कर सकता है, राइट। सो 13 फाइनेंस कमीशन है तो सबसे पहले थोड़ा सा पीछे देखेंगे हुआ क्या, 13 फाइनेंस कमीशन में क्या था 9.6% था, ठीक है ना। तो ये तो बहुत पहले की बात है। अब देखिए किस ईयर में ये किया गया था। अब परहैप्स a 10% upper limit of the share of the cesses and surcharges as the percent of the central GTR may be recommended। हो सकता है कि 10% की एक लिमिट को रिकमेंड कर दे कि आप शेयर एंड जो मतलब आपके सर चार्जेस हैं और जो आपके सेसेस हैं उसमें जो है 10% से ज़्यादा आप शेयर नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। ये हो जाएगा, ये 16 फाइनेंस कमीशन कर सकता है। देयर विल बी वन प्रोपोर्शन से लाइक 42% इफ सेसेस एंड सर चार्जेस एक्सीड। तो वही है कि अगर 10% से ज़्यादा हो गया तो 42%, अगर 10% से कम हुआ तो 41%, राइट। अब क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो सकता है, ड्यू टू अटेंशन due attention needs to be paid on the
नीट फॉर द लोअर इनकम स्टेट, से यूपी हो गया, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सारे जो स्टेट्स हो गए, तो इन पे बहुत अच्छा अटेंशन पे करने की जरूरत है कि कैसे इनको ज़्यादा फिजिकली जो है स्ट्रेंथन किया जाए। अब रिलेटिवली लार्जर शेयर इनको दिया जाना चाहिए, जिससे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया में आए, अच्छे से अच्छा मतलब स्किल्ड लेबर फोर्स क्रिएट हो ऐसे स्टेट्स में, जो कि इंडिया के फ्यूचर में जो है हेल्पफुल हो, अच्छे फ्यूचर, बेटर फ्यूचर में। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, एजुकेशन और हेल्थ की फैसिलिटीज़ को बेहतर किया जाना चाहिए, ठीक है ना। और वेट टू डिस्टेंस क्राइटेरिया को वेट देना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ द रिसोर्सेज टू इंडिविजुअल स्टेट्स में भी गाइडेड बाय इक्वलाइजेशन, तो यहाँ पे इक्वलाइजेशन प्रिंसिपल है, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करना चाहिए, इसकी वजह से क्या होगा कि इक्वलाइजेशन कर देंगे तो उसमें 3 क्राइटेरिया ध्यान में रखना होगा हमें, और एक क्या हो जाएगा, एक पॉपुलेशन, ए और एरिया, एंड ये हमारा डिस्टेंस, राइट। अब उसके बाद क्या आता है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बजट मैनेजमेंट टैक्स है, ठीक है ना, उसमें 40% है, 40 to 20% होना चाहिए, जो कि यहाँ पर देखिए कितना जा रहा है, यहाँ पे 58% जा रहा है और 31% जा रहा है, इसको भी चेक करना चाहिए, राइट। और जो सेंटर का एफआरबीएम टैक्स है, राइट, जो सेक्शन का लॉ, उसको मतलब उसको फिर से मतलब एक बार री एग्जामिन करना चाहिए, जो कि 15th फाइनेंस कमीशन है। तो ये सारे आप क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन में लिख सकते हैं, राइट। एज आप इसको चाहे रिकमेंडेशन में लिखो, सोल्यूशन में लिखो, चाहे आप ये कंक्लूजन में लिखो, राइट। और ऐसे ही जो ये नीचे लिखा था ये आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और तो इसमें आखिर में क्या है कि यहाँ पर ये जो सोल्यूशन दिए गए तो ना, कि मेरिट भी देखना चाहिए कि आप सब्सिडी दे रहे हो तो कैसे दे रहे हो, राइट। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस जरूर बेहतर होंगे। और अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो रीड करके रखने का और बहुत सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड करके रखने का टेलीग्राम चैनल से, उसका कोई यूज़ नहीं है। अगर 2 से 3 पेज की भी होती है तो भी वो आपके किसी यूज़ की नहीं, क्योंकि बहुत सारे पेजेस होंगे और आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, एक मैगजीन भी पढ़ना है, राइट। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अप्लाई लॉजिकली ऑफ योर माइंड, बी कंप्लीटली रूथलेस टुवर्ड्स योर स्टडीज, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन।